dear friends, I Ron Misra welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, actually I know you are at a home. Now it's very important point wise, chapter wise explanation of the NCERT is very essential. So my dear friends, I Ron Misra come with my team from Earth Classes to explain you each and every words which has been already mentioned in NCERT book chapter wise. So today I am going to start the next topic, next chapter of chemistry, acids, bases and salt. Now acids, bases and salt. Today's topic. My dear students, actually in this chapter we have to know about the acids, bases and salt. What is the acids? How can I know the solution is acidic, basic, and now salt. Acids, bases and salt. So first of all I would like to discuss to all of you what is the content of this chapter. इस चैप्टर में है क्या क्या? तो इस चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, of acids and bases, सेकेंड इंडिकेटर की बात करता है. व्हाट इज इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड यूज ऑफ इंडिकेटर, हाउ इट विल चेंज इट्स ओन कलर एंड शो द डिफरेंट सॉल्यूशन. थर्ड, इंडिकेटर्स के बाद आता है एसिड्स and its types. Now base and types. base की बात करता है. Now chemical properties of acid, chemical properties of acids. Now bases, chemical property of acids and bases. Now ये बात करते हैं इस चैप्टर में सॉल्ट. pH, pH स्केल, उसके बाद बात होती है सॉल्ट्स की. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को कैसे फॉर्मेट करेगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई today's class just we are discussing about the introduction of acids, bases and salt, indicators, acids and its type and bases, and now chemical properties we will discuss in next classes. So just I am going to start it. What is the introduction of acids? Acid क्या है मेरे प्यारे बच्चों? acids every day just we are using the different types of fruits or eatable substances which taste in sour, जिसका टेस्ट sour है, खट्टा लगता है खाने में, that is called acids. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलते हैं. Now it changes the
color of blue litmus paper into red, that is called acid. We have already discussed such types of definitions in junior sections. Now here we have to improve a little bit so that we can enhance our knowledge. Now introduction, when you are going to read the book of NCERT chapter 2 acid and base, then you will find in first paragraph there is some introductions. वो कुछ इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन ये है कि एसिड्स क्या है. Now every day just we are using some food materials, especially junk food or oily food. After overeating, we are facing some irritation in our throat. जलन महसूस होता है, इरिटेशन होती है. Why is it? Actually this is the acidity. जंक फूड या ऑयली फूड जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज ड्यू टू नॉट कंप्लीट डाइजेशन इट फ्लो एज एसिड्स और थ्रोट हमारे गले से निकलती है और वो जलन महसूस होता है. नाउ टू ओवरकम सच टाइप्स ऑफ एसिडिटी वी यूज सम रेमेडी फ्रॉम द मार्केट लाइक मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया. Now milk of magnesia, its chemical formula is MgOH whole 2. This is the remedy to overcome our the acidity. कभी कभी कोई नींबू पानी भी यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. जस्ट यू कैन यूज बेकिंग सोडा ऑल्सो. तो वाई we are using such types of remedy to overcome the acidity? Actually acidity, it is producing more acids, and such acids चूंकि ऑयली और जंक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करता है जो एसिडिटी के फॉर्म में आ जाता है. इसको कंट्रोल करने के लिए रेमेडी यूज करते हैं, वो होता है बेस. और एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वी फील कूल, वी फील रिलैक्स आफ्टर यूजिंग द बेस बिकॉज इट बिकम्स द न्यूट्रल. तो इस टाइप का इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ. Suppose that sting, honeybee आपको स्टिंग कर देती है, कोई कीड़ा स्टिंग कर देता है, तो वो प्रोड्यूस क्या करता है, फॉर्मिक एसिड. हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है और फॉर्मिक एसिड चूंकि वो हमारे लेयर से, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि आवर skin it has been made up of the 3 layers, epidermis और epidermis layer होता है. I don't know the complete layer of the skin, but epidermis. Now formic acid is injected in the upper layer of the skin. तो ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता, अपर लेयर में और जलन महसूस होती है. तो जलन क्यों होता है, ड्यू टू एसिड. एक्चुअली दिस इज अ फॉर्मिक एसिड. नाउ हाउ कैन बी रिलैक्स? इमीडिएट यू कैन यूज द पेस्ट. आप पेस्ट उसमें रब कर दो या फिर आप उसमें किसी तरह का बेकिंग सोडा को रब कर देंगे. पेस्ट इज ऑल्सो बेस. तो वो क्या आता है, वो अपर लेयर में होता है, एपिडर्मिस लेयर में होता है. वो बेस जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है न्यूट्रलाइज होता है एंड वी फील रिलैक्स. अनदर एग्जांपल यू कैन टेक कि आपको
फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया, हनी भी रिलैक्सेशन हुई। इसी तरह से हमारे डेली लाइफ में बहुत तरह का एग्जांपल्स आते रहते हैं। जस्ट यू कैन वी आर यूजिंग टूथपेस्ट, एक्चुअली whatever we are eating, now it is converting to the lactic acid, converting to the acid in our mouth, and in at night entire mouth become the acidic. So to neutralize it we use the toothpaste which is base, and acid and base becomes neutral, and we can save from the tooth decay. दांत को टूटने से बचने के लिए हम लोग बेस को यूज करते हैं सुबह ब्रश के फॉर्म में, और नहीं तो रात में जो हमने खाया थोड़ा बहुत जो उसका पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर रह गया वो पूरे कंप्लीट इन्वायरमेंट हमारे माउथ का सलाइवा के साथ एसिडिक बना देता है, और एसिडिक के कारण इनामेल लेयर डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली आवर टूथ कैन बी डिकेड. So to prevent the tooth decay, we use the base as a paste since early in the morning. So there are so many examples of acids and base. And in NCERT, first paragraph you will find such types of things, and you can understand after reading it. Now, my dear students, this is the acids and bases which is used in our daily life. Now my dear students, today we will discuss about the what is the acid. Acid किसको बोलते हैं? तो simply acids, the chemical substances which taste in sour, change the color of blue litmus paper into red. And now one point just I am adding here, because in junior section you have already studied it. Now which produces red, and it produces H plus ion. H plus ion according to Arrhenius principle. According to Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, now change substance which takes in sour. हर चीज सोवर ही लगे तो टेस्ट लगने के बाद हम पता लगाएंगे कि वो एसिड्स है या बेस है, और अगर वो एसिड्स ऑलवेज हार्मफुल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा. सो वी कांट टेक ऑल द एसिड्स थ्रू द टेस्ट. तो हाउ कैन आई नो? तो सेकेंड थिंग इज यूजिंग लिटमस पेपर. Litmus paper, it is a type of paper which can we get from the lichen plants. Lichen plants से हम उसको गेन करते हैं, and its color is purple, and it is a group of Thylophyta. Thylophyta ग्रुप का एक प्लांट है लाइकेन, उसके
आउटर कवरिंग लेयर से हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर का सॉल्यूशन, लिटमस पेपर और उसको सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो नाउ वी कैन टेस्ट द एसिड्स थ्रू यूजिंग द लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। नाउ ये तो मैं टेस्ट कर लिया बिना टच किए, एक तो टच किया, दूसरा बिना टच किए, तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एसिड्स बोलेंगे। तो सपोज दैट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, जब इसको लिक्विफाइड कर देंगे, वाटर के साथ मिक्स कर देंगे और लिक्विड स्टेट में ले आएंगे, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है, टूट जाता है। तो हियर इट इज गिविंग H प्लस आयन, तो HCl इज प्रोड्यूसिंग H प्लस आयन, सो दिस इज HCl इज एसिड, इसलिए क्या है मेरा एसिड। नाउ H प्लस आयन इट इज इन फ्री स्टेट, it does not want to continue in free state, so it dissolve, it mix with, it combines with water molecules which is present in acid and produces hydronium ion. Now H plus ion को यहाँ खींच ले, H plus ion वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइंड करके ये क्या करेगा, आपको हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, H3O plus ion, this is known as hydronium ion. Now what is the definition of acid according to the Arrhenius? Now the chemical substances which produce H plus ion or hydronium ion, that chemicals in their aqueous solution, the chemical substances in aqueous solution which produces H plus ion or a hydronium ion, H3O plus ion, that is called acid. उसको हम क्या बोलेंगे, acid बोलेंगे। In this way just you can understand what is acid. So acid is that substances which is test in sour, which change the color of blue litmus paper into red, or it in aqueous form it produces H plus ion or hydronium ion, that is called acids. अभी एग्जाम्पल होता है कि एसिड्स का एग्जाम्पल आप देते हैं आपको, CH3COOH, that is acetic acid, HCl hydrochloric acid, HNO3 nitric acid, H3PO4 phosphoric acid, H2CO3 carbonic acid. These are the different types of acids. This is the examples of acid. Acid का example होगा. Now this is the definition, and below just I have already mentioned the examples of acids. Now one thing I would like to clear once again, my dear students, what is hydronium ion? So देखिए, I have written all of you. Now just I have, you can write it so that you have to go through the reading again and again and understand, and after all if you don't understand you will write in my comment box so that I can send you the right answer. My dear friends, अब ये हाइड्रोनियम आयन का एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं so that you can understand. देखिए ये HCl है, इसको जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए तो ये H प्लस आयन में टूट गया और Cl माइनस आयन में टूट गया।
आगे ब्रोंस्टेड लोरी का भी एक प्रिंसिपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर के बेस पे एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल HCl। तो ये H प्लस आयन क्या है? वाटर में एक आयन के फॉर्म में फ्री स्टेट में मूव कर रहा है, जबकि फ्री स्टेट में रहेगा नहीं। तो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा तो चूंकि HCl है, HCl में H प्लस आयन प्रोड्यूस किया था, ये उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन में। नाउ H प्लस आयन जो है, एक्वस का मतलब वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन कर लेगा और क्या बना देगा? H3O प्लस आयन। तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन और H आयन। इट मींस इसकी बेस पे बोल रहे हैं कि ये H प्लस या हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। That is called acid. Now we will discuss about the types of acid. Types of acid. There are different types of acids. First जो है आपका वो on the basis of a strength, on the basis of a strength। तो on the basis of a strength का मतलब ताकत के आधार पर, उसके स्ट्रेंथ के बेस पे। तो there are two types of acid, a strong acid and second is वीक एसिड। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration। so what is the concentration? blue वाला। on the basis of concentration मतलब सांद्रता के आधार पर कितना एसिड्स प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ क्या है उसका, H प्लस आयन का, उसके बेस पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रण, हिंदी में कितना अमाउंट ऑफ एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेस पे बात करता है। तो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। कंसंट्रेशन के बेस पे वो होगा कॉन्संट्रेटेड एसिड, कॉन्संट्रेटेड एसिड एंड सेकंड होगा डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट थर्ड बात करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स तो यहां भी दो है, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आपका हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। Now for one on the basis of basicity, on the basis of basicity, so here there are three types of, first monobasic acid, monobasic, डाइबेसिक और तीसरा ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एंड
tribasic acid. Now just we can discuss one by one by different equation on the basis of strength. तो स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो जनरली मिनरल एसिड्स, those acids which is formed by the minerals, and minerals you know very well which occurs in our the earth crust, उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड those which acid which is formed by the minerals, that is called a strong acid. Now एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, etc. These are the mineral, these are the strong acid. Now weak acid किसको बोलते हैं? Those which acid which is formed or which we can get from the plants और एनिमल्स, वह एसिड जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उस टाइप के एसिड वीक एसिड होता है। एक्चुअली एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर, इन प्रॉपर्टी यू कैन ऐड इट, एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव होता है, कोरेजन का मतलब डैमेजिंग द अपर लेयर ऑफ द थिंग्स, that is called corrosion. And now just it has been formed, it has been changed into the adjective now corrosive, मतलब लेयर को डैमेज कर देना। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द नेचर ऑफ एसिड्स। तो ये किसी के ऊपर आप H2SO4 या HCl डाल दीजिए, आपने कई बार सुना होगा फिल्मी दुनिया में या जनरल डेली लाइफ में भी, न्यूज में भी, कि किसी ने किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया। तेजाब क्यों डाला? What do you mean by the तेजाब? This is the acid, a strong acid, and when it splashes on the other's body, it has been damaged. If splash into the faces has been damaged. तो ये strong acid है, corrosive in nature. तो क्या weak acid corrosive नहीं होता है? It's also a corrosive in nature. ये भी है, but it is mild corrosive. And it is used in our daily meals. डेली के भोजन में एक पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स। नाउ पिकल्स, लेमन जूस, साइट्रस फ्रूट्स, all contains what? Acid, but these are mild acid. आपको अभी मैंने बताया कि चींटी काट लेता है लाल वाला, या फिर आपको हड्डा काट लेता है, मकड़ी काट लेता है, या फिर आपको हनी बी काट लेती है, तो आपको जलन होता है। एक्चुअली वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में। लेमन जूस में साइट्रिक एसिड है, दूध में लैक्टिक एसिड है, दही में लैक्टिक एसिड है, टर्मरिक में। तो ये सारे चीजों में हमारा क्या होता है? एसिड्स पाया था, बट दीज आर माइल्ड एसिड। सो यू कैन पुट द एग्जांपल हियर। एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मिक एसिड। टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, these are all we can get from the plants or animals. So these examples of weak acid. Now first it has been clear on the basis of a strength. There are two types of acid, a strong acid and weak acid. And a strong acid, those weak acids which are highly corrosive in nature and which is formed by the minerals, and the weak acid which we can get from the plant and animals. Now we will discuss about on the basis of concentration. Concentration का मतलब कितना अमाउंट उसके अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट है, pH स्केल है, और pH स्केल में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ pH H प्लस आयन को देखते हैं। तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है एसिड्स में,
वो एसिड्स के स्ट्रेंथ को बताता है। नाउ उसी के बेस पे अगर H प्लस आयन नॉर्मल कंडीशन में, माइल्ड कंडीशन में, नाउ इट इज ए डाइल्यूट एसिड, लेकिन जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाई होगी तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द weak acids are always dilute acid, and we can mix the acids into the water. We can dilute the concentration of acids. Now concentrated acid, example HCl, H2SO4, HNO3. Now diluted, mixing with water. More water mixed with concentrated acid. ज्यादा पानी जब मिला देंगे तो वो क्या होगा? मेरा डाइल्यूट एसिड बन जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, तो यहां भी वही है, ऑर्गेनिक का मतलब था और लिविंग थिंग्स। तो वो एसिड्स जो लिविंग थिंग्स के थ्रू प्राप्त गेन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। और वो जो मिनरल्स के थ्रू बनता है, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले मेटल, नॉन मेटल से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। नाउ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड and weak acid is organic. Now here this is the same example. Weak acid, organic acid, it means weak acid, and inorganic it means this is the strong acid. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है और वीक एसिड जो है वो मेरा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग easily. Definitely I take some more time to explain, but it is a starting point. If you understand, definitely the whole chapter you can understand easily. Otherwise, introduction or basis will left. You can't understand the whole chapter. You can't understand. Now, my dear students, we will discuss about on the basis of basicity. So on the basis of basicity, it means production of H plus ion. Production of H plus ion, H plus ion के प्रोडक्शन के बेस पे वो इसका बेसिसिटी बोलते हैं हम लोग। एसिड को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। अगर ये H plus ion प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, फर्स्ट मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड है तो मोनोबेसिक एसिड में क्या होगा? मोनो का मतलब वन और बेसिक का मतलब H प्लस आयन जो प्रोड्यूस किया गया, तो वन H प्लस आयन जो प्रोड्यूस होगा जिस एसिड से, तो उसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? एग्जांपल HCl, इट प्रोड्यूसेस in aqueous solution, it is produces H plus HCl minus ion, and this H plus ion combines with water and it gives H3O plus and hydronium ion. This is producing only one H plus ion, so this is HCl is mono. Example, HCl is monobasic. HBr, HI, hydroboric acid, आयोडिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा इसका नाम बोलते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, आयोडिक एसिड बोलेंगे, ब्रोमिक एसिड बोलेंगे, और अदरवाइज वी कैन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली इन ऑल दीज एग्जांपल्स इट विल प्रोवाइड ओनली वन H plus ion, so such types of examples is monobasic acids.
Now second is dibasic acid. डाइबेसिक एसिड, तो डाइबेसिक एसिड में क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, प्रोवाइड्स 2H+ आयन, 2 देगा। यहां मोनोपोसिक में इट प्रोवाइड्स 1H+ आयन, एक ही H+ आयन का प्रोडक्शन करेगा। नाउ H2SO4 एग्जांपल आपका है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज द डाइबेसिक एसिड। हाउ? नाउ इसको जब हम पास कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ब्रोकन डाउन पार्शियली। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HSO4 प्लस H+ आयन में टूटेगा, HSO4 प्लस H+ आयन में टूटेगा। तो यहां पर आपको एक H+ आयन दे दिया और ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया आपका। नाउ इट कैन बी आल्सो ब्रोकन डाउन, सो इसको आप यहां पर खींच के ले आए हम लोग HSO4 को, और जब इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देंगे, नाउ इट विल broken down H+ ion plus SO4 2- ion. Now again ये H+ ion वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो now how much hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयन will be formed? तो 2 hydrogen ions are formed and 2 hydronium ions are formed in this reaction. So H2SO4 is डाइबेसिक एसिड। नाउ थर्ड ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड H3PO4, इसको जब तोड़ेंगे तो पहले टूटेगा मेरा H2PO4 प्लस H+ आयन, फिर H2PO4 को तोड़ के लाएंगे तो ये टूट जाएगा HPO4 प्लस H+ आयन, और फिर HPO4 को हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आपको H+ आयन, PO4 3- आयन, PO4 3- आयन प्लस H+ आयन। Now up you can observe here there are 3 hydrogen ions are producing in this compound H3PO4 से। ये H+ आयन, एक दूसरा H+ आयन, तीसरा H+ आयन, और ये सब वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना जाएगा, H3O+ आयन बना देगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर के H3O+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, और ये प्लस वाटर के साथ कंबाइंड करके H3O+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। नाउ एक्चुअली हियर इट इज प्रोवाइडिंग 3 हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज कॉल्ड tribasic acid. Now my dear friends, today we will discuss about the acids. Now how can I understand without testing or without using taste, seeing or observing the compounds, we can identify the compound is acid or acidic or basic. Now we will discuss about the indicator. Indicator, what is indicator? Indicators, those which chemical substances, those which chemical substances those which chemical substances
change its own color, change its own color, and expresses about the solution is acidic or basic. कॉल्ड इंडिकेटर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलेंगे। मतलब वो केमिकल सबस्टांसेस जो अपना कलर चेंज करके वो उस सॉल्यूशन के बारे में बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। उसको इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन चैप्टर। द इंडिकेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। नाउ दिस इज द इंडिकेटर का एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। इंडिकेटर्स का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं लिटमस पेपर और ए सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, लिटमस पेपर, रेड कैबेज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, these are the examples of indicators. Now types of indicators. How many types of indicators? There are 3 types of indicators. First, natural, man-made or synthesis. Man-made, synthetic, and now olfactory indicator. इंडिकेटर 3 टाइप्स का है मेरे बच्चे। नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा? Those fixed indicators which is found in our nature or we can get from the nature, that indicators are called natural indicator. एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा आपका? बहुत सारा चीज है नेचुरल इंडिकेटर में। रेड कैबेज, टर्मरिक, वनीला, टर्माइन, रेड कैबेज बैटर, petals of flower, color petals of flower, litmus पेपर। ये सारा मेरा जो है वो क्या है, इसका एग्जांपल होगा। तो these are the examples of natural indicator. ये सब मेरा क्या है? एग्जांपल। Now man-made indicators. Man-made indicators का एग्जांपल होगा मेरा मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, एंड थर्ड वन है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। Such type of indicators provides through the smell. ये इंडिकेटर it expresses
about the solution. About the solution. Is acidic or basic? Is acidic or basic? By changing their smell. By changing their smell. Called olfactory indicator. जो स्मेल चेंज करके अपने आप को बताएगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक, उसको क्या बोलते हैं? olfactory indicator. एग्जांपल में अमोनियन हो जाएगा. दूसरा क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वनीला, ये सब जो है ये हमारे एसिड और बेस को स्मेल चेंज करने पर लगता है. नाउ ओनियंस इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल. नाउ when we put the acids in its juice or a mixed onion floss, it is providing different smell. There is no changing one but when we put on into bases, then the smell will disappear. It means through the smell it will show the solution is acidic or basic, and such types of indicators are called olfactory indicators. Now my dear students, actually each and every classes should be minimized 40 or 45 minutes, not more than 40, so that our interest can be continued. Don't be feel bored. So now just I am making a table and you will remember it. कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में कैसा कलर देता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन हर एग्जाम में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो इट विल बी आस्क्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ first litmus paper, litmus, blue and red. Second, methyl orange. Third, snorkeling. Fourth, turmeric. Fifth, red cabbage. Sixth, onion. Seven, hydrangea. This is a type of plant. Clove oil. Vanilla. And
नाउ indicators, this is the these are the indicator sample of indicators. इसका कलर क्या होगा? ओरिजिनल कलर। नाउ एसिड में इसका कलर क्या होगा और बेस में इसका कलर क्या होगा? Now litmus paste of blue is blue in color, red in color, methyl orange it is orange in color. Now phenolphthalein, this is colorless. Now turmeric it is yellow in color. Red cabbage, red violet, onion, a special smell, phylloxera, hydrangea it is blue in color, clove a smell, vanilla it gives a smell, and red chucundar it is violet. These are the original color. Now blue litmus paper change into acid red. यहाँ बेस में नो चेंज, रेड लिटमस पेपर एसिड में नो चेंज, और बेस में क्या होगा? रेड ब्लू हो जाएगा। कलर चेंज, कलर इन एसिड, कलर इन बेस। नाउ मिथाइल ऑरेंज एसिड में नो चेंज, और बेस में पिंक हो जाएगा। फिनोफ्थलीन एसिड में रेड हो जाएगा, सॉरी एसिड में मिथाइल ऑरेंज रेड एंड बेस में येलो हो जाता है। नाउ फिनोफ्थलीन जो है कलरलेस है, ये नो चेंज होता है यहां पे, और ये बेस में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नाउ टर्मरिक इट इज येलो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नाउ बेस में एसिड में नो चेंज, और बेस में या एसिड में आप येलो का येलो ही रहने देंगे, और बेस में जैसे ही साबुन से इसको हम ब्रश करते हैं या वॉश करते हैं तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। नाउ रेड कैबेज नो चेंज इन एसिड, और बेस में ये ग्रीन हो जाता है। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। ओनियन का एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होता है,
लेकिन बेस में ओनियन का जो स्मेल है जैसे ही डालेंगे तो स्मेल विल डिसअपियर। स्मेल क्या हो जाएगा मेरा, डिसअपियर हो जाएगा। हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया ब्लू, यहां पर नो चेंज एसिड में, और यहां पर क्या हो जाता है मेरा, पिंक हो जाता है। क्लोव ऑयल की बात करेंगे तो एसिड्स में, क्लोव ऑयल का एसिड्स में स्मेल डिसअपियर हो जाएगा, स्मेल डिसअपियर। बट इन बेस में क्या होगा, नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरह से वनीला जो है स्मेल चेंज नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन बेस में क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। बेस में डिसअपियर हो जाता है। और रेड चुकंदर, रेड चुकंदर जो है यहां नो चेंज होगा और बेस में ये येलो हो जाएगा। नाउ दीज आर द टेबल्स फॉर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कलर, types of indicators in acids and bases। तो ये आप 10 points just you have to remember so that 1 or 2 marks, that is very very important, you can solve it। And my dear students, one thing is more that previously I have made the mnemonics of metal reactivity series. I will try once again to make a mnemonics to remember the different changing of color of acids and base. If it will be made properly, I will supply you, I will give you once again so that you can remember easily. And today's the class is too long, my dear friends, don't be feel bored, so just I am going to conclude the class right now, and from this point I will proceed in next live classes. And I think you have observed it, you have watched my video very nicely and you have grasped a lot. So my dear friends, if you like my video or classes, never forget to subscribe and share among all the students so that they can get more and more benefit. Thank you my dear friends, thank you.